It's just a few hours now to counting day, and the big question is who will win Haryana and Jammu and Kashmir. I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. Our focus today continues to be on the big moments of politics, both in Haryana and in Jammu and Kashmir. Is it going to be an advantage for the opposition? In Haryana, polls seem to be unanimous about an advantage, but Jammu and Kashmir is presenting a much more complicated picture in a historic election, the first since the abrogation of Article 370 and the first in 10 years. Different factors from Haryana to Jammu and Kashmir are making their impact felt, from restless protest to farmers' agitation in Haryana, also anger over the Agniveer recruitment scheme. Amid debate over who will be the chief minister of Haryana, in Jammu and Kashmir, of course, the set of factors are entirely different. The big political question is whether it will be a day that belongs to the opposition, or will it be a sort of draw with the hung assembly, as some are forecasting for Jammu and Kashmir, and a win for the Congress in Haryana. Joining us now is somebody whose life and blood is, of course, polling. Pradeep Gupta, the chairman of Access My India, is with us. Namaskar, Pradeep ji. It's good to see you, and thank you very much. मुश्किल स्टेट से शुरू करूंगी, जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि I think Haryana is a little more linear and Jammu and Kashmir has much more significance in its larger implications also. Now, your findings in Access My India are that there are greater chances of a hung assembly than of the National Conference and the Congress being able to form a government. The reason that you offer for this is that there are at least 23 seats, you say, in the Kashmir Valley, जिसमें fight बहुत tight है. But एक चीज इसमें प्रदीप जी याद करनी पड़ेगी as we look at your forecast कि NC Congress is a pre-poll alliance. So, and it looks like it has the advantage. So won't it, if this bears out, if the exit polls are similar to reality, won't the NC Congress have the first chance at forming the government? So, thank you, Barkha ji, for having me here at your show. Now, you're talking about J&K and various possibility and scenario of forming the government by particular party of the alliance. So, to understand in a very simplistic manner, our range start for NC Congress and CPM Gathbandhan in Jammu and Kashmir, 35 to 45, meaning 40 is a mid mark of our range. There is a possibility with 45 seats or one or two here and there that NC and Congress Gathbandhan can form the government. But that possibility in our poll is roughly around 20% and 80% possibility of the hung assembly, what we are predicting. Okay, so these 40 seats, and for BJP, we are predicting 24 to 34, meaning around 30 seats mid-mark. So these 40 and 30 of BJP, 70 seats. These are the 70 seats which is distributed among these two party and Gathbandhan. Now, most important thing is these 20 seats. Who these 20 are? When it comes to Jammu and Kashmir, and if you cannot talk about PDP, it will be unfair. Now, PDP, after aligning with BJP in last 2014, after 2014 election, drastically has been reduced their base. And इतना ज्यादा कि आपके 3-4 महीने पहले के लोकसभा इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती अपने खुद की सीट अनंतनाग से लोकसभा का इलेक्शन हार गई, और हारी भी तो 2.5 लाख वोट से ज्यादा, जो कि सिग्निफिकेंट नंबर। एक बात। दूसरी बात, जो पीडीपी को 2014 असेंबली इलेक्शन में 28 सीटें मिली थी और 25 सीट बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, बीजेपी को 25, और वोट शेयर रफली मिला था उनको 27-28 के आसपास। वो हमारे पोल में रिड्यूस होके पूरे स्टेट की बात करें तो वैली की नहीं 8 से 9% की तरफ जाता दिख रहा है, और सीटों की बात करें तो 4 से 6, यानी मैं 5 सीटें मानता हूं पीडीपी की हमारे पोल के हिसाब से। तब हम 20 की गणना कर रहे थे काउंट, जो कि 5 पीडीपी। दूसरी बात है कि महबूबा मुफ्ती या पीडीपी का सिग्निफिकेंट डाउनफॉल हुआ पार्टी का, उससे इमर्ज हुए अब्दुल इंजीनियर रशीद,
इंजीनियर रशीद ने एआईपी फॉर्म किए, 2 आप काउंटिंग दिन के देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अभी भी उनको रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, इस रीजनल रिकॉग्नाइज पार्टी। उनकी बात करना बहुत जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर के आज के कॉन्टेक्स्ट में। कारण यह है कि उन्होंने सिर्फ बारामूला लोकसभा सीट जीती नहीं है, उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट पे उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। उसी सीट के ऊपर सज्जाद लोन तीसरे नंबर पर रहे थे। बारामूला की 18 असेंबली सेगमेंट में से इंजीनियर रशीद ने 14 के ऊपर बढ़त हासिल की। 18 में लेकिन से इस पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि इंजीनियर रशीद काफी वक्त बिता के आई हूँ जम्मू कश्मीर में, इंजीनियर रशीद से मुलाकात भी हुई, लेकिन आप ही के अपने पोल के मुताबिक वो जिस तरह के जायंट किलर के दर्जे से एक तरह से छाए हुए थे लोकसभा चुनाव में, इफ वी ब्रेक डाउन असेंबली सेगमेंट्स विद इन द बारामूला लोकसभा सीट, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली डज बेटर देन इंजीनियर रशीद्स पार्टी. Now you can see that you project 8 seats for the NC plus, and you project 5 for Engineer Rashid and only 2 for Sajad Lone's party. इसका मतलब कि while he was a formidable force in the Lok Sabha, he has not performed as well in the assembly segments. Very pertinent and important question you asked. Now, just before this election started, he released from the jail on the bail. एंड उन्होंने वहां पर जाके क्या बातें कही, यदि आपको याद हो या क्या लाइन ली रहा कि आप मुझे केवल 14 से 15 सीटें दीजिए, मैं बीजेपी को अपनी उंगली के ऊपर नचाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बीजेपी वर्ड नहीं कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी उंगली पे नचाऊंगा और राज्य के कश्मीर के मुद्दों के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करवाऊंगा। इसका मतलब एक क्लियर मैसेज गया कि ही समहाउ अलाइंड or tilted more towards BJP rather than on its own, जो कि पीडीपी ने भी वही गलती की थी या उसका खामियाजा वो भुगतती दिख रही है पीडीपी पार्टी। उसी हिसाब से अब्दुल रशीद की पार्टी भी, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 महीने के बाद जो 14 असेंबली सेगमेंट 18 में से लीड लेते नजर आ रहे थे, हमारे पोल में उनको देखिए 4-5 जने जब चुनाव लड़ते हैं एक सीट पे और सब पार्टियां मजबूती के साथ, और खासकर बारामूला लोकसभा रीजन की बात करें तो वहीं पर ही सज्जाद लोन है, वहीं पर ही अल्ताफ बुखारी की पार्टी का भी है, वहीं एनसी ने भी लड़ना है, वहीं पीडीपी ने भी लड़ना है। तो इतने लोगों के बीच में 5 की जगह आप 3 या 4 ही मान लीजिए मेन कंटेंडर, तो वोट परसेंटेज जो विनर होता है ना, वो 26 से 27% वोट ला ले वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब आटे की टक्कर होगी। और उसमें ये देख पा रहे हैं हम कि अब्दुल रशीद की पार्टी को 3 से 8 तक हमने दी। 8 की बहुत बड़ी रेंज है, बट 5 यहाँ भी मान लेते हैं, तो 5 इनकी, 5 पीडीपी की और 3 करीब सज्जाद लोन की पार्टी एनसी की, सॉरी पीसी की, और 2 करीब अपनी पार्टी की विच इज दी अल्ताफ बुखारी। तो ये फिर 5 हो गए, ये भी छोटी, तो 15 की संख्या हो गई। अब 5 जो बचे, 5 से 8 और बचे, जो 5 तो ऐसा लग रहा है कि पक्का जीतेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसमें से 1 या 2 वो भी हैं जिनको एनसी टिकट नहीं दे पाई कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वैली में, तो वो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। अब मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है। नाउ अ लॉट इन, बिकॉज आपने कहा है दैट द पॉसिबिलिटी इज ग्रेटर ऑफ अ हंग असेंबली। अदर्स, ये जो अदर्स का गुट है, इसमें कितने लोग आते हैं, दैट विल बिकम क्रिटिकल। अब आपके पोल के मुताबिक the NC Congress is and the left is projected to get 34 to, no, this is not correct. It is projected BJP is 34 to which 24 34 and NC Congress Gadbanda 35 to 45. Yes, I need to correct this, and I am just doing it right here. That is what I was thinking, that looked wrong to me. Yes. So it is 35 to 45, right? It is 35 to 45. BJP is projected to get 24 to 34. The PDP is projected to get 4 to 6. The Engineer Rashid is projected to get between 3 and 8, right? अब आप आगे बढ़ते जाइए, इसमें सजाद लोन is projected to get between 1 and 3. Altaf Bukhari between 0 and 2. And the others, and इसमें आपने others is not Altaf Bukhari, it is not Engineer Rashid, it is pure independent.
pure Okay, so now the Jamaat-e-Islami is backing 10 independent candidates. There are also candidates like Muzaffar Beg and his wife. अब इनको अगर हम मिला ले, then this is, if your poll is correct, a formidable group. It is a formidable group, but not a group. But Pradeep ji, ये सारे कश्मीर की पार्टीज हैं, कश्मीर के नेता हैं, right? अब इनका tie up with the BJP is very unlikely, certainly not in partnership. हाँ, ये पहले हो चुका है. PDP, BJP have formed a government together in Jammu and Kashmir, but Mehbooba Mufti is still at a political disadvantage because of that. तो अगर ये others का बड़ा गुट आता भी है, and BJP does very well in Jammu, so the likelihood of them and the BJP coming together is also very small. मैं आपको बस एक छोटा करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि जो आपने 4 से 10 की बात कही प्योर इंडिपेंडेंट, वो उसमें से 4 के करीब मानिए, 4 के करीब जम्मू रीजन से आ रहे हैं और 6 के करीब आते हैं तो that is important. अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम था. That is an important detail. ठीक है. Okay, so now what are the permutation combinations then? Permutation combination can go anywhere, and we should not forget, in the case of pure hung assembly, those 5 nominated members will play a crucial role. If it is one party mandate full 46 plus, then there is, I don't think, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ और ये कानून तो अभी नया बना है, कि मुझे नहीं लगता कि जो पीपल्स का मैंडेट यदि 46 किसी पार्टी के फेवर में हो तो उन 5 का उतना बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि उनका पर्पस ही है कि भाई व्यवस्था और उसमें आप मदद कर पाएंगे, इसके लिए लाइक राज्यसभा में देश करे तो, बट लोअर हाउस ही डिसाइड करता है. बट यहाँ पर जो नॉमिनेटेड यदि हंग आती है, इसका मतलब है असेंबली को इनकी जरूरत है, और जब जरूरत होगी तो दे 5 will play a crucial role. So we are then talking about 5 that the Lieutenant Governor can nominate, 4 from Jammu, who we can assume are likely to be pro-BJP because of the regional division. You look at the Jammu slide from your poll is up on our screen. The BJP clearly getting all of its seats from the Jammu region. तो अगर वो upper end तक जाती है तो 9 seat, I'm hypothesizing here, 9 seats BJP को और मिल सकती हैं, which are 5 nominated by the governor and 4 others from Jammu. अब वही अगर हम वॉर गेमिंग एनसी कांग्रेस के साथ करें तो ये पॉसिबिलिटी है. हाँ जी, थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें एक जो इंजीनियर रशीद की बात करना जरूरी है. जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं और जिस हिसाब से उन्होंने लाइन ली है, तो आज की डेट में ऐसा लगता है वो जो उनकी 5 सीटें हैं, उनकी जो 5 सीटें वो भी more tilted towards BJP rather than NC and Congress, क्योंकि उनकी लाइन ही वो है. तो मैं कहूंगा कि उनको भी थोड़ा सा 5 आप just for sake of the calculation count कर सकते हैं at this point of time when we are counting it. and सज्जाद लोन के भी चांस है कि वहां जाने के, हालांकि उनकी 2 से 3 सीट है, बट एक चांस तो है जरूर. I would actually like to play out a clip for you because I asked Engineer Rashid, can you support a BJP government? और उनका क्या जवाब था. हाँ, आप प्लीज सुनिए 2 मिनट. Let's take a look. So if there is a hung assembly, who are you ready to support? Are you ready to support? Are you ready to support a government with BJP? मेरी बात सुनिए. मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है. पर हाँ या ना में तो बताइए. नहीं, मैं आपकी अदालत में थोड़ा हूँ. हो सकता है कोई सवाल में जवाब ना दूं. जी, ये तो बस फेयर नहीं है ना. क्यों फेयर नहीं है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. मैं इतना कह रहा हूँ कि जैसे ही 8 तारीख आती है जी, जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं मोदी जी की तरह उतना विद्वान नहीं कि मैं कहूँगा अब की बार 400 बार. मैं इतना कहूँगा आई एम श्योर माय पीपल विल नॉट लेट मी डाउन. अच्छा, आप सुन नहीं पाए तो मैं रिपीट कर देती हूँ. हाँ जी, उन्होंने पहले मुझे कहा कि मैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. तो मैंने कहा आप हाँ या ना में जवाब दीजिए. तो उन्होंने कहा मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं, मैं ये नहीं कहूंगा आपकी बार 400 पार अपने लिए, लेकिन माय पीपल विल नॉट लेट मी डाउन. मतलब कहने का उन्होंने सवाल टाल दिया. सीधी बात है, उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, उन्होंने सवाल टाल दिया. ठीक है. हाँ, तो यू फील दैट इंजीनियर रशीद कुड इन सम फॉर्म और शेप also possibly support a BJP
government, but there is one problem with this, Pradeep ji. जिन लोगों ने बड़ी तादाद में इंजीनियर रशीद को बारामुल्ला में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उनको लगा कि ये जो बाकी सारी पार्टीज है, इन्होंने कभी ना कभी तो बीजेपी के साथ डील की हुई है, 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद बाकी सब तो जेल से निकल गए, सिर्फ एक इंजीनियर रशीद ही जेल में थे. प्लीज रिमेंबर, एट द टाइम ऑफ द लोकसभा ही वाज स्टिल इन जेल. एट द टाइम ऑफ द असेंबली ही इज आउट. ही वाज अ मोर पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन जेल देन आउट ऑफ इट. तो मैं सिर्फ फिर भी ये कहूंगी दैट फॉर एनी कश्मीर पॉलिटिशियन टू ओपनली एंड डायरेक्टली सपोर्ट द बीजेपी, उनके लिए अगले चुनाव में बहुत मुश्किल है फिर. Not a single percent out on that. But see, the post-election, what things takes place, we have very good examples in the past, from Shiv Sena to PDP. Right. To many examples, to SP to BSP. We have many examples. So let's see what it happens. But at this point of time, I would say 60-40 chance of Rashid coming to BJP folds if it required. By your numbers, there is a greater chance of a BJP government in Jammu and Kashmir than of an NC Congress. No, I'm not saying so. You're not saying that? I'm not. Because आपकी maths तो थोड़ी सी वही suggest कर रही है. Together. Since you started discussing the possibility, if at all they started with if BJP can form the government, then we should get on to the possibility as you were about to get to, but I interrupted. Sorry. Okay, so then let greater chance, because their margin from the magic mark is much closer, number one, and then two, ideologically, these 15 is coming from the valley. These 20, that's Yes. 30, 40 and 20. और इसमें ये भी कहना जरूरी है that Mehbooba Mufti could support an NC Congress government from the outside. Yes, that's right. So that also has to be looked at. Out onto that, I don't think is there any doubt in anybody's mind that she will be more tilted towards NC Congress rather than BJP, because so in a way, एक तो NC Congress का final figure क्या होता है वो बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि others के कितने आते हैं. अगर मैं इसको short में बोलूं, इसमें बिल्कुल अगर और मगर की पूरी गुंजाइश है किसी भी हंग असेंबली में. तो अगर के 35 की तरफ जो हमारी लोअर रेंज है, जिसमें कि यदि एनसी कांग्रेस जाती है, फिर बीजेपी के चांस ज्यादा है. लेकिन यदि के ये 40 के आसपास और 40 के प्लस की स्थिति में जाती है, देन एनसी कांग्रेस. Now I think uncommented on in this poll is a very interesting question that you asked. What you ask people, what are the various reasons that you chose whichever party you chose? Why? And why have you chosen the party that you have chosen? अब इसमें एक बहुत ही interesting आंकड़ा है. 3% voters chose the party that they did because of the abrogation of Article 370, or only 1%. I'm looking for that number here now. Only 1% chose their party. Only 1% chose their party because they believe that Article 370 can still be restored. तो मुझे जो समझ आ रहा है कि 370 जो लगा था कि बहुत बड़ा मुद्दा होगा, at least statedly it is not a मुद्दा. 26% of people in your poll have said that they chose their party in J&K because of development. So, बिल्कुल इसमें ऐसा होता है बरखड़ी, ये सवाल हम हमेशा पूछते हैं कि आपने पहले तो पूछ लिया किसको वोट किया, फिर उसके बाद पूछते कोई भाई खास कुछ वजह है क्या, कोई कारण है क्या इस पार्टी को देने के लिए. तो 370 वी ऑल नो दैट कि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट कोई भी वोकल कभी बोलता नहीं है. ये उसी तरह की चीज है कि कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं अपनी जाति मेरी है इसलिए मैं वोट कर रहा हूँ. हकीकत ये है कि सब जाति के उसके आधार पे ही करते हैं और उसमें कोई गलत जी, ठीक है. तो ये मामला है. बट आप उसमें परिवर्तन और विकास देखें तो वो उसी का एक सबसेट आता है कि कश्मीर वैली की जहां तक बात करें, वहां पर मैं खुद भी गया था. श्रीनगर के चारों तरफ मैंने खुद ने सर्वे किए, कम से कम 100 से ज्यादा मैंने इंटरव्यूज खुद ने किए. ऑल नो दैट कि पीपल रिफ्यूज टू टॉक टू, बट स्टिल आई ट्राई मैनेज दैट. तो बोलने का मतलब ये आंकड़ा कम दिखता है, बट मुद्दे की बात कश्मीर वैली के अंदर 370 को लेके बिल्कुल के बिल्कुल बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुस्सा नजर आया.
जम्मू में खासकर, अब जम्मू भी 2 रीजन में डिवाइड है ना, विद इन जम्मू ऑल्सो आप देखेंगे कि पूंछ, राजौरी और करीब 14 सीटें, 43 में से 14 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम निर्णायक पर भूमिका रोल करते हैं। तो वहां को छोड़ दें तो बाकी पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में जो 66% हिंदू आबादी है पूरे की बात करें जम्मू की, तो दे वर वेरी हैप्पी। सो यही तो जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी है कि एक स्टेट के अंदर 2 स्टेट है। Yeah. So I think this is a very important point, because आपने ये बात ठीक कही कि just because only 1% talk about the restoration and only 3% talk about the abrogation, it doesn't mean it's not an issue. It means that people don't want to talk about it necessarily openly. But where you talk about the divide between Jammu and Kashmir as regions, I think it's worth bringing up those slides again. Because one of the things to remember is, जिसकी भी सरकार बनती है, they cannot have a sarkar representing only one region. है ना, ये नहीं हो सकता, वो सरकार चल नहीं सकती, especially if statehood will be restored, which is widely expected, and the Supreme Court has also in a way may direct that. So उसके बारे में बताइए, the clear division in how the Kashmir Valley and how Jammu is voting. देखिए ये तो शुरू से ही है, clear division is there for the ages because of the demographic kind. हिंदू एंड मुस्लिम, जब कश्मीर वैली में 97% मुस्लिम है और यहाँ पे करीब 2/3 हिंदू हैं, तो वो क्लियर डिवीजन इज ऑलवेज देयर। वो चाहते हैं कि उनका सीएम, वो चाहते हैं कि उनका सीएम। अब सीटों के लिहाज से भी कितनी, 87 पहले सीट थी, अब 90 है, फिर भी डिलिमिटेशन के बाद भी 43 उस साइड जाती हैं, लेकिन उस 43 में भी जैसे मैंने कहा 14 सीट्स में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में और 47 इधर है। तो ये एक, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, इसी हिसाब से बात होती है। बरखा जी ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए और सबके लिए। हमने देखा है देश के नेशनल परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं सदर्न इंडिया में, भाई सदर्न इंडिया इज ऑलवेज ट्रीटेड वेरी बैडली इन टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंड साउथ इंडिया का क्यों नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने अपनी बुक में भी ये बात लिखी है कि भाई इट्स नॉट साउथ इंडिया माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑलवेज द रिप्रेजेंटेशन। सरकार कौन बना रहा है, सरकार के अंदर नुमाइंदे आप ही के तो चुन के भेजे हुए हैं। तो बट ऑब्वियस है जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी के हिसाब से उसके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे। कहने को वो साउथ इंडिया लगता है 25% ऑफ द पॉपुलेशन, नो, एक्चुअली इट इज नॉट मोर देन 5%। यदि कर्नाटक का बना दें तो तमिलनाडु कहेगा मेरा क्यों नहीं, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो आपका 6% या 7% रिप्रेजेंटेशन से आप चाहेंगे कि आपके नुमाइंदे या मेंबर ज्यादा हो जाए, ये कैसे होगा, और ये कोई न्याय नहीं होगा। उसी हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में जब हम ये सब जानते हैं, जब दोनों को टोटल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 60 to 65% बिलोंग्स टू द कश्मीरी या द मुस्लिम्स एंड रेस्ट बिलोंग टू द, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हो नहीं सकता ऐसा कि बनना तो एक ही को है, सीट तो एक ही है। अब सीट उसी की ज्यादा होगी जिसकी बची। It is as simple as that. Finally, before we move on to Haryana, you also did ask who is the preferred choice for chief minister. और ये भी एक interesting इनमें responses आए हैं. Omar Abdullah does lead that preference, but there is an interesting response. There is an interesting response in 17% saying any candidate from BJP. ये मुझे हाँ, तो मतलब the second most popular candidate for chief minister is any candidate from BJP. Obviously this is Jammu overwhelmingly. उसमें भी ऐसे होता है। ओवर द पीरियड ऑफ हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि रिकॉल वैल्यू, चूंकि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी, उनकी रिकॉल वैल्यू, और जो चीफ मिनिस्टर कभी रहा नहीं है तो उसके बारे में कॉमन मैन को पता होना, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं किसी भी पार्टी के टॉप और जो वर्चस्व रखते हैं उनके लिए मुश्किल है। जैसे हरियाणा में भी अब भूपिंदर सिंह हुड्डा तो हैं तो उनका नाम ज्यादा आएगा, भले नायब सिंह सैनी का भी वहां पर आ रहा है क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, उसके नेक्स्ट बेस्ट आ रहा है। वो चीज यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सीएम कभी बने नहीं है जम्मू में या उस तरह के बीजेपी के कोई नेता। दिस इज द केस जी। तो पर इसको देखते हुए before we move on to Haryana, your sense is the largest prospects are of a hung assembly and then everything depends on margins. Would that be a fair summary? Margin में number of seats by these two major party versus individual and small parties.
So the others and जाती हैं, अदर्स 20 से उठ के 25 पे चले जाते हैं। मेरा ऐसे अदर्स, उसमें हम पीडीपी को भी शामिल कर रहे हैं। पीडीपी इंजीनियर रशीद ये सब मिलके भी 20 से उठ के 30 पे चले जाता है, देन बीजेपी के चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो रिड्यूस एनसी कांग्रेस को करेंगे जब ये बढ़ेंगे। All right. This is certainly going to be the more complex election as the numbers come in. Let's move to what is expected to be the simpler election to forecast, which is Haryana. And as we bring your numbers up, Pradeep ji, of course, you have forecast a huge anti-incumbency against the BJP government. Walk us through what is happening here. Is this a negative vote against the BJP? Is it a positive vote for the Congress? अच्छा, इसमें दो आप ही के आंकड़ों में देख के पता लगता है। एक तो the massive shift of the Jat vote. That is a very important point. And the second is ML Khattar's unpopularity. So before we come to the numbers, if we can go to the Chief Minister's slide. In Haryana, in your poll, when you ask who is the preferred choice for Chief Minister, obviously Bhupinder Hooda ji tops the list. पर आप देखिए मनोहर लाल खट्टर की जो favorability है 1%. 1%. अब उनको अब you know that captures something. Go ahead Pradeep. देखिए, उनको सबको ये पता है कि जब उनको रिप्लेस किया गया है 1 साल पहले ही, तो उनके बनने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत, जैसे मैंने कहा, एक चीफ मिनिस्टर की रिकॉल वैल्यू। No, but it captures the unpopularity that was। हाँ जी। मैं हरियाणा में हुआ क्या है, क्यों कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई और इतनी स्ट्रांगली बनती हुई दिख रही है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। 3 बड़े कारण है। एक, ऑफ कोर्स 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और खासकर हरियाणा जैसे राज्य में इज क्वाइट एविडेंट। तो सवाल ही नहीं उठता कि तीसरी बार कोई गवर्नमेंट रिपीट हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो। हुड्डा जी ने भी रिपीट किया था, एक बार रिपीट किया था, इसका मतलब 10 साल तक सरकार चली। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है, हरियाणा की जब बात करते हैं, ये सबको जानना जरूरी है कि हरियाणा की जो मेजर 2 पार्टी थी वो इनेलो और कांग्रेस ही थी शुरू से। 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ कि बीजेपी को केवल 33% वोट मिले, लेकिन ये जो उनकी जो मेजर 2 पार्टी थी हरियाणा की, उनके बीच में वोटों का डिवीजन शार्प हुआ, इतना शार्प कि 24% मिले इनेलो को और कांग्रेस को तीसरे नंबर पे 21%। और दोनों हम ये जानते हैं कि जो राजनीति करते हैं कांग्रेस हरियाणा में, और खासकर भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो, इज ऑल अबाउट जाट। और जाट की बात ना करे हरियाणा में तो क्या करे, हो नहीं सकता जाट की कल्पना के बिना। जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी की बात किए बिना आप क्या बात कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो उससे ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, नॉन जाट सीएम पूरे 10 साल और 9 साल खट्टर जी, ये जाट लोगों को तो बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, पिछली बार भी हजम नहीं हुआ था, बट 19 में क्या हुआ, जैसे हमने 14 की बात कर ली, 19 में क्या हुआ था कि जेजेपी अलग पार्टी बनी, लोगों को लगा उनमें देवीलाल की छवि दिखी दुष्यंत चौटाला में, और लोगों ने उनको 10 सीटें और 15% वोट के साथ। तो बीजेपी को वोट मिले कितने, 37। एक मिनट, आप ही के पोल में से दिखाना चाह रही हूँ कि जाट वोट आप किस तरह से दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बढ़त देखिए, अगर आप ही की मैंने आज स्लाइड उठाई है तो आप देखिए कि +39 का आंकड़ा वहां दिखाई जा रहा है। पिछले बार से +39 हुए, और वो आए कहां से, वो देखिए अदर्स में, क्योंकि जेजेपी को हमारे पोल में 1 से 2% मिल रहा है, तो उनको हमने अदर्स में ही रखा है। वो जेजेपी से पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ, बनिस्बत उसके बीजेपी का माइनस जाट देखिए, आप देख पा रहे हैं करीब। हाँ जी। और ये जाट है, और सिख में भी करीब करीब यही सारी चीजें, ये 19% है, और जाट सिख जो है वो 3%। तो 22% प्लस दलित के 21%, +3% मुसलमान के, और +2% अदर माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन और बौद्ध। ये मिलके एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि जाट ने, मुसलमान ने बड़ी संख्या में जो वोट है वो कांग्रेस के फेवर में दिया। और उसका कारण ये है कि 10 साल नॉन जाट सीएम, ये किसी को हजम ही नहीं हो रहा हरियाणा के अंदर। उसके चलते देख पा रहे हैं आप कि दुष्यंत चौटाला की खुद की सीट से, उचाना से, मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोगों का माइंडसेट इस कदर से बना हुआ है, आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे कि उनको डबल डिजिट में भी वोट मिल जाए खुद की सीट से, तो बहुत बड़ी बात होगी।
मेरे ख्याल से। So the JJP is decimated, your forecast, but you are not writing off the INLD, the BSP. You're saying कि उन्होंने फिर भी एक relevance अपनी बनाई हुई है। अभी मैं उस पर तो INLD और BSP गठबंधन जो हुआ, BSP कंसिस्टेंटली हरियाणा के अंदर 4% वोट लेती रही है। पिछले बार INLD नीचे गई और उसके 2% वोट थे, इस बार वो 2 के 4 और BSP के 4 होते हुए हमारे पोल में 8% वोट उनको मिल रहा है। एंड यदि INLD और नहीं होती बाइपोलर तो वो तो 90 में से 80 सीट आती इस बार कांग्रेस की। उनके वो थोड़ा बहुत 8% तक वोट। आप ये देखिए, पहले 24 इनेलो का 14 में जी, 15 प्लस 2 इनेलो प्लस JJP 19 में, और अब उसका आधा हो गया। तो उसी हिसाब से बीजेपी की सीटें पहले तो आई 46, 33% के साथ, 37% के साथ 40 ही है, 37 के साथ 40 और 33 के साथ 46। और अब जो है हमारे पोल में मिलता दिख रहा है 35%। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग फिर भी काम करते हैं, सिंगल फेस का पोल था, बड़ा मुश्किल होता है सेम डे एग्जिट पोल करना, तो हमने दूसरे दिन यानी विच इज यस्टरडे भी काम किया है, और मुझे लग रहा है ऐसा है कि ये 35 से 33% होगा, और शायद कांग्रेस की सीटें 5% और हम 5 सीटें और रिवाइज करने, यानी 65 की जो हमारी हायर रेंज है वो 65 से 70 तक भी चली जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। So Congress is expected to be even better than your initial set of polls have forecast. Even better than higher range, which is up to 70 seats. अब इसमें से कुछ नेशनल पॉलिटिक्स के सवाल निकलेंगे, बात करेंगे लोग, क्या हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स बदल रही है? यूपी में बीजेपी को लोकसभा में धक्का पहुंचा, हरियाणा में अब पहुंच रहे हैं, असेंबली चुनाव में कुछ मुद्दे रहे हैं, बड़े मुद्दे रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है, और क्या इससे हरियाणा के चुनाव से, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगी, बड़ा अलग चुनाव है, हरियाणा के चुनाव से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? इज समथिंग शिफ्टिंग और इज इट स्टेट स्पेसिफिक? देखिए, ये सब जानते हैं कि स्टेट इलेक्शंस एंड पर्टिकुलरली डिफरेंट स्टेट बिहेव डिफरेंटली, इस पे तो कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। रह गई बात बीजेपी की, तो आप ये देख रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूं मेरे रिवाइज एस्टिमेट के साथ भी यदि बीजेपी 37 लास्ट टाइम से अब 35 और 33 पे आती तो 3-4 परसेंटेज पॉइंट्स का 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, और इतना तो माइनस या रिड्यूस होना लाजमी है। एक बात। दूसरी बात, ये ठीक है कि अब नेशनल परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की बात करें तो 10 साल पहले हो गए थे, और अब ये 5 साल होते हैं, तो 15 साल 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी भी आएगी रोल में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। सवाल ये हमेशा से होता है, जैसे कि इस बार यहाँ पे हरियाणा में वोटों का कंसोलिडेशन जो बोलते हैं ना, अपोजिशन वोट, एंटी इनकम्बेंसी वोट, वो किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं, उसके ऊपर से सब कुछ डिपेंड करता है। रह गई बात हरियाणा की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल हरियाणा के इलेक्शन से कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में बीजेपी या उसके कोई मायने बहुत ज्यादा निकाले जाने चाहिए, एटलीस्ट एट दिस जंक्शन। लेकिन अंत में पूछूंगी, हरियाणा इज वन, इफ द एनसी कांग्रेस, इफ बड़ा इफ है, इफ द एनसी कांग्रेस इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर उनके हायर रेंज में जाते हैं नंबर्स एंड नॉट एट द लोअर रेंज, और अदर्स के बहुत ज्यादा नहीं जाते, मैं एक सिनेरियो पेंट कर रही हूँ, तो लोग मानेंगे कि ऑपोजिशन का दिन है, बीजेपी का दिन नहीं है। ये डेमोक्रेसी में होती है बातें। हाँ, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल। जब दोनों जीत रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आगे महाराष्ट्र और झारखंड है, एनी इंस्टिंक्टिव कॉल्स कि यू विल वेट टू डू सम पोलिंग? We'll have to wait for that. We have been doing all these 2 stages. Okay, प्रदीप जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। कल एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो आपसे दोबारा बात करेंगे। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग, we'll have actual data to compare and contrast and think. Thank you so much and take care. My pleasure. Bye. Namaskar. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.